Hello class 12th. Today we are discussing chapter 10 Financial Market. See, market is a place where we go to buy something. Now, as far as financial market is concerned, the market which deals in financial assets like shares and bonds. Okay, these financial assets are very much important for companies and a big organization. Okay, big business organization. So a financial market is a market which creates and which is used for exchange of financial assets. Okay, basically it is a link between savers and borrowers. Okay, if we see this diagram here, household means savers. We people who save small amounts in our houses, okay, we deposit into banks and financial markets like share market. Okay, and these share markets and these banks provide money to all business firms. Okay, and they are investors because they make big investment in machines, furniture. Okay, and they produce something good for consumers, ultimate consumers. Okay, so thus banks and financial markets are the links between savers and borrowers. Okay, these business firms need money, so they borrow from banks and financial markets. So today we are discussing what banks we know very well. Okay, so today we are discussing financial markets. So basically these financial markets deals in financial assets. It helps in mobilizing savings and channelizing them into the most productive uses. It helps to link the savers and the investors by mobilizing funds between them. The persons or institutions by which allocation of fund is done are called financial intermediaries. Allocation of funds is done like banks and financial markets. Okay, these are known as financial intermediaries like share markets. They bring together borrower and lenders and make funds available to those who are willing to pay for their use. Now, functions of financial market. Functions क्या क्या हैं? Financial market mobilizes saving and channelizing them into the most productive uses, because घर में जो household के पास जो savings रखी हैं वो उन पर उनको उतना interest या उनको dividend नहीं मिलेगा. अगर वो banks में या वो financial market में वो उसको आगे deposit करते हैं तो उनको उससे ज़्यादा profit होगा. Okay, and these financial markets helps and channelizing them into the most productive uses. Okay, they help to channelize surplus funds into most productive use. Second function is परचेज कर सकती हैं और सेल कर सकती हैं. देन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. ओके, अगर हर कोई उन्हें केवल अपने ओन बिहाफ पे उनको सेल और परचेज करे तो शायद वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगे और टाइम एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगा. बट दिस फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस अबाउट सिक्योरिटीज़. सिक्योरिटीज़ में सब आ जाते हैं, शेयर्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है,
it saves time, efforts and money, and thus it reduces cost of transactions. So these were the functions of financial markets. Now let us discuss types of financial markets. दो types हैं, capital market and money market. Capital, basically we know that capital is required by every businessman, okay, for long term. कैपिटल ऐसे नहीं है कि जो 1 ईयर में वापस वो बिजनेस से निकाल लेते हैं, नहीं. कैपिटल जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस फर्म्स को रिक्वायर्ड होती है, जिससे कि वो अपना लॉन्ग टर्म एसेट्स वो परचेज करते हैं. सो कैपिटल मार्केट वो है जो जिससे कि बिजनेस फर्म अपने लॉन्ग टर्म मनी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं. और मनी मार्केट जो है उससे शॉर्ट टर्म के लिए, मीन्स 1 ईयर के लिए अगर मनी की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो मनी मार्केट से पूरा करती हैं. ठीक है. अब कैपिटल मार्केट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. अब प्राइमरी मार्केट क्या है? जो न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो फर्स्ट टाइम जो इशू होते हैं, ओके, तो वो प्राइमरी मार्केट में इशू होते हैं. ठीक है. बट जो पहले से ही इशूड जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका ट्रेड कहाँ होता है? सेकेंडरी मार्केट में. ओके. देन आपका मनी मार्केट में जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मनी मार्केट में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये इनको इनमें डीलिंग होती है. ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल. चिल्ड्रन प्लीज़ keep in mind, commercial papers are different and commercial bills are different. दोनों में फ़र्क होता है. बच्चे क्या है, कमर्शियल पढ़ा और वो कमर्शियल पेपर लिख कर आ जाते हैं, जबकि लिखना था कमर्शियल बिल. तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि जो कैपिटल मार्केट में जो पार्टिसिपेंट होते हैं, कि कौन कौन कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन वहाँ से फाइनेंस अवेल करते हैं. बैंक्स, इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, LIC एंड अदर्स. एंड हियर in money market basically we common people do not participate much. Here RBI, commercial banks, investors, but big investors, okay, and LIC and others, these are the participants. And these capital market is totally controlled by SEBI. ठीक है. मनी मार्केट पे सेबी का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन कैपिटल मार्केट पे सेबी का पूरा कंट्रोल होता है. ठीक है. और ये सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं ये उसी के अंदर ये रन करते हैं. ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मनी मार्केट. मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स. ठीक है. शॉर्ट टर्म यानी कि जैसा मैंने बताया कि 1 ईयर फॉर 1 ईयर finance purposes money market is approached. Okay, so it is a market for short term securities whose period of maturity is up to 1 year. The major participants in the money market are RBI, commercial banks, non banking finance companies, इनको NBFCs बोलते हैं. ओके. जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से जो बाउंड नहीं होती हैं. ठीक है. उस पर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लाइक मुथूट फाइनेंस कंपनी. ओके. और इसमें स्टेट गवर्नमेंट और लार्ज कॉरपोरेट हाउसेज और म्यूचुअल फंड्स ये पार्टिसिपेट करते हैं. ओके. नाउ फर्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल दे आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड. ओके. दे आर इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स. ठीक है. जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो RBI को वो कहती है, तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है. ओके. जो वो अपनी फेस वैल्यू से कम पे इशू होते हैं. सपोज 100 रुपीज़ का अगर ट्रेजरी बिल है तो वो इशू होगा 90 रुपीज़ पे. ओके. एंड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी द इन्वेस्टर विल बी गिवन 100 रुपीज़. 100 मीन्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं वो. ओके. सो they are issued at a price which is lower than their face value and are repaid at par. At par मतलब जो face value है उसकी वो उतने पे उनको repay किया जाता है. They are available for a minimum amount of rupees 25,000 and in multiples thereof. 25,000 का एक ट्रेजरी बिल हो गया. ठीक है. 2 ट्रेजरी बिल हैं तो वो 50,000 के हो जाएंगे, इस तरह से. ठीक है.
Then they are also known as zero coupon bonds. They are negotiable instrument. Negotiable instruments मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट विच आर freely transferable and assures the guaranteed payment. Okay, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसका मतलब है कि उस पर जो अमाउंट लिखी हुई है उसका पेमेंट गारंटीड होगा ही होगा. ओके, जैसे चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मनी ऑर्डर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. ओके, प्रॉमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. बट यहाँ पे चेक में अगर कोई चेक क्रॉस्ड चेक है, ठीक है, क्रॉस्ड चेक, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज कमर्शियल पेपर. अब कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? दे आर अनसिक्योर्ड promissory notes issued by large credit worthy companies, जिनकी की मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी हैं जिन कंपनीज की, तो वो इशू करती हैं टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स. ठीक है, उनको शॉर्ट टर्म फंड्स जब रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे अभी जैसे क्रेडिट वर्दी कंपनी से फॉर एग्जांपल रिलायंस की गुडविल काफ़ी अच्छी है और सपोज वो इशू करती है शॉर्ट टर्म के लिए, अगर उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है और अगर वो कमर्शियल पेपर वो इशू करती है तो पब्लिक उसमें इन्वेस्ट ज़रूर करेगी. सो इस तरह से कंपनीज जब अपने शॉर्ट टर्म फंड के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स जो इशू करती हैं, तो उनके पीछे कोई भी एसेट मॉर्गेज नहीं रखी जाती है. ओके, वो अनसिक्योर्ड होती हैं. But as these are issued by some credit worthy companies, so their payment is also assured. Okay, so companies they issue at lower rates of interest than market rates. ठीक है, they are negotiable instruments transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period of 15 days to 1 year. Okay, so this time period please keep in mind, 15 days to 1 year, and these are issued by credit worthy companies, and this source is usually used for जो अमाउंट जो क्रेडिट वर्दी कंपनीज जो कलेक्ट करती हैं, बेसिकली वो कलेक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके, उनकी सीजनल नीड्स पूरी हो सके, एंड फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग. सो बेसिकली these commercial papers are also called bridge financing. ये इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है चिल्ड्रन, सो प्लीज़ कीप इन माइंड. देन नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज कॉल मनी. कॉल मनी, इट इज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंस which is repayable on demand. ओके, एंड विच विद द मेचोरिटी ऑफ 1 day to 15 days. ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम 15 days के लिए जो है कॉल मनी बेसिकली जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है. ठीक है, जनरली ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स होते हैं. इट इज़ अ मेथड बाय विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर, एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है, टू बी एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो एज पर RBI. कई बार क्या होता है, अगर एक बैंक से सपोज बहुत ज़्यादा किसी दिन डिपॉजिट्स जो है वो निकाल ली जाते हैं, अगर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा मनी वहाँ से डिपॉजिट जो हैं वो निकाल लेते हैं, तो उनका रेशियो कम हो जाता है, CRR कम हो जाता है. ठीक है, RBI के अकॉर्डिंग जो कैश रिजर्व रेशियो उनको एक पर्टिकुलर जो भी रेट है वो रखना होता है. बट अगर उनका CRR कम हो गया तो उसको वो पूरा कैसे करें? एकदम से तो कोई मनी वहाँ पे डिपॉजिट करवाएगा नहीं, तो उससे पूरा करने के लिए वो दूसरे बैंक की हेल्प लेते हैं. ठीक है, तो वो 1 day से 15 days के लिए वो कॉल मनी वो दूसरे बैंक से वो बोरो करते हैं. ओके, एंड इंटरेस्ट रेट्स paid on call money loan is known as call rate. ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट होती है वो कॉल रेट कहलाती है. ओके, देन नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. अब ये क्या है? ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है इशूड इन बेयरर फॉर्म बाय कमर्शियल बैंक्स. अब जैसे ऊपर कमर्शियल पेपर जो था वो इशू कर रही थी क्रेडिट वर्दी कंपनीज, अब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये इशू कर रही हैं कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली.
ठीक है, और ये भी अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, ठीक है, इनके पीछे भी कोई भी एसेट वो मॉर्गेज नहीं रखी जाती है. दे कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल्स, corporations and companies for raising money for a short period from 91 days to 1 year. Okay, so basically it is unsecured instrument used by commercial banks and financial institutions. And last is commercial bill. अब commercial bill और commercial paper ये दोनों different हैं, ठीक है. कमर्शियल पेपर तो इशू हो रहा है क्रेडिट वर्दी कंपनीज के द्वारा, और कमर्शियल बिल जो है वो जनरली जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है. ओके, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल जो है बेसिकली वो यही है कमर्शियल बिल. इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस फर्म्स. अ सेलर ऑफ गुड्स ड्रॉज द बिल ऑन बायर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. This you have already studied in 11th class also, children. So generally it is a bill of exchange which is written by seller on buyer. Okay, and buyer accepts it and return to seller. Okay, so when the bill is accepted by the buyer, it becomes marketable instrument. Okay, and is called a trade bill. ठीक है, और ये जब ट्रेड बिल बैंक से जो डिस्काउंट करा लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कमर्शियल बिल. सो इफ सेलर is in need of funds before the maturity of the bill, then he gets it discounted from bank. Okay, now some questions. List any two participants of money market. money market के participants कौन कौन है, तो बैंक और LIC. then what is the minimum amount of treasury bill, तो minimum amount है इसकी 25,000. and who is borrower of a call money. call money generally interbank transaction होता है, ठीक है, तो ये borrower भी बैंक होता है और इसका जो लेंडर है वो भी बैंक ही होता है. ओके, सो आई होप यू हैव गॉट वेरी क्लियर टुडेज डिस्कशन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट वीडियो, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कैपिटल मार्केट. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.